So what we just discussed is that there's something called as neutralization. Neutralization means reaction of an acid with a base, and when acid reacts with a base we get salt and water. Now जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं that is hydrolysis. So hydrolysis is exactly opposite of neutralization reaction. Now what it means is neutralization reaction is acid plus base gives salt and water. Acid plus base gives salt and water. Now hydrolysis is defined of salts. So hydrolysis is nothing but is exactly opposite of neutralization. मतलब यहाँ पे हम एक salt लेंगे hydrolysis में. I'll take a salt and then I'll add water to it. So whenever I take salt and then add water to it, I'm going to get acid plus base. समझ में आ रहा है? So hydrolysis of salt is nothing but take salt, add water to it, and then we get acid plus base. So hydrolysis is exactly opposite of neutralization. Neutralization मतलब acid plus base gives salt and water. Hydrolysis is take salt, add water to it, and then we get the corresponding acid and base. अब सबसे पहला जो salt है, जो बना है, which is of strong acid and strong base. तो अब अगर आप उसको ध्यान से देखिएगा, salt of a strong acid and strong base of type NaCl. Okay, the very first one, I'll change the color. So this is the salt of strong acid and strong base, and this salt is neutral in nature. वो पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज कर जाएगा. ठीक है, तो जितना हम एसिड लेंगे उतना ही हम उसमें बेस भी ऐड करेंगे, एंड इफ आई ऐड देम आई एम गोइंग टू गेट अ न्यूट्रल सॉल्यूशन. तो इफ समवन आस्क कि हाइड्रोलिसिस ऑफ NaCl करके क्या मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा. सॉल्यूशन में वी आर गोइंग टू गेट Na+ ions and Cl- ions. Now let's move on to the second type of salt, which is salt of weak acid and strong base. So the example that I've taken is CH3COONA. तो थोड़ा सा CH3COONA के बारे में देख लेते हैं. तो जो CH3COONA salt बना है ना, वो बनता कैसे है? तो you take acetic acid, that is CH3COOH, mix with a strong base NaOH, and then we get CH3COONA plus H2O. ये कैसा एसिड है? So this is weak acid. ये कैसा बेस है? So this is strong base. And then we get a salt and then water. अब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, ठीक है ना? So this is salt of, ये जो salt है, so this is categorized as salt of weak acid plus strong base. अब इस सॉल्ट को हम हाइड्रोलाइज करेंगे. तो सॉल्ट को हाइड्रोलाइज करेंगे का मतलब क्या हुआ? सॉल्ट को हाइड्रोलाइज करेंगे का मतलब है we'll add water to this salt. So now let's add water to this salt. CH3COONA plus H2O. So the moment I add water to this salt, what is going to happen is that I'll get back the corresponding acid, that is CH3COOH, and the corresponding salt, that is NaOH. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि NaOH is a strong base, like HCl is a strong acid. So whenever we say strong acid, strong bases or strong electrolyte, तो strong का मतलब ये होता है कि they ionize 100%. कहने का मतलब ये है कि if I have an acid like HCl in a solution, HCl is a very strong acid, तो HCl पूरा का पूरा आयनाइज कर जाएगा इन H+ and Cl- ion. मतलब अगर मैंने इसका 2 मोलर सोल्यूशन लिया है तो 2 मोलर पूरा का पूरा आयनाइज करेगा, और H+ का 2 मोलर होगा, Cl- का भी 2 मोलर होगा. सिमिलरली NaOH इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. इसको अगर मैंने पानी में डिसॉल्व किया तो Na+ पूरा का पूरा आयनाइज कर जाएगा. अगर ये 2 मोलर है, ये 0 0, सो आफ्टर डिसोसिएशन दिस विल बी 2 मोलर
and this will also be 2 molar. So the ionization is going to be 100% in case of a strong acid and strong base. But in case of a weak acid का हमने देखा है कि भाई weak acids they are weakly ionized, उनका ionization उतना strong नहीं होता. ओके और दूसरी एक और बात है कि जितने भी सॉल्ट्स पानी में डिसॉल्व होते हैं ना, जितने भी सॉल्ट्स पानी में डिसॉल्व होते हैं वो पानी में आयंस के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे. मतलब CH3COONA इज अ सॉल्ट. अभी जैसे देखो यहाँ पे जो सॉल्ट्स के जो हमने एग्जांपल लिए, नाउ दिस NaCl इज न्यूट्रल इन नेचर, बट इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन हाउ इज गोइंग टू एग्जिस्ट? इन एक्वस सॉल्यूशन दिस विल एग्जिस्ट एज Na प्लस एंड देन Cl माइनस. तो जितना भी डिसॉल्व होता है पूरा का पूरा आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट होगा. अभी ये एक्वस सॉल्यूशन में कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो ये एग्जिस्ट करेगा CH3COO माइनस एंड देन Na प्लस. NH4Cl कैसे एग्जिस्ट करेगा? सो दिस विल एग्जिस्ट एज NH4 प्लस प्लस Cl माइनस. ये कैसे सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा? तो ये भी सॉल्यूशन में CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस की तरह एग्जिस्ट करेगा. मतलब जितने भी सॉल्ट्स जिनका हम सॉल्यूशन बनाएंगे और जो सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं, they will exist in the form of ions. Fine. So now let's get back to the hydrolysis that we were discussing. So यहाँ पे the salt that we have is CH3COONA. So in the next step, I'm going to write here. ये जितना भी salt हमने लिया है ना, X amount लिया है या Y amount लिया है, वो पूरा सॉल्यूशन में CH3COO माइनस एंड देन Na प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. प्लस यहाँ पे मैंने वाटर ले लिया है एंड देन दिस विल आयनाइज टू गिव CH3COOH. ये बहुत ही वीकली आयनाइज है तो उसका आयनाइजेशन मैं नहीं पकड़ रहा हूँ. यहाँ पे NaOH इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो सॉल्यूशन में Na प्लस और OH माइनस आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला है. यहाँ तक सबको समझ में आ रही है क्या बात? Yes or no? Can you all hear me? Yes, sir. Yes, sir. आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है नहीं? गुड. तो जैसे Ka was defined for ionization of an acid, then we defined another term that is Kb, that was the ionization for base. Similarly, here we'll define something called as Kh. Kh is nothing but it's a hydrolysis constant. Kh is hydrolysis constant, and this is defined as concentration of CH3COOH into concentration of OH माइनस है. चाहिए रहेगा तो Na प्लस भी लिख लो, बट Na प्लस कैंसिल आउट होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी Na प्लस है, बट लेफ्ट हैंड साइड में H2O आ रहा है और यहाँ पे मैंने H2O का कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिया है. क्यों नहीं लिया है? कैन एनीवन टेल मी? H2O का कॉन्सेंट्रेशन 1 होता है क्या? नहीं, H2O का हाँ सर. नहीं रे बेवकूफ कहीं के. पिछले क्लास में बोला था ना 55.5 मोल्स. 55.5 is the molarity of water. H2O का concentration is not 1, it is 55.5 molar. Why I haven't taken it? Because it's a constant. तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो Ka रहता है, Kb रहता है या Kh रहता है ना, इसमें ऑलरेडी वो वाली वैल्यू मल्टीप्लाइड रहती है. जो भी कॉन्स्टेंट्स रहते हैं ना, दे आर ऑलरेडी मल्टीप्लाइड. दैट्स व्हाई KH के टर्म में you don't see H2O. ये बात समझ में आ गई? तो अब जरा इक्वेशन को थोड़ा मैं नीट एंड क्लीन तरीके से लिखता हूँ. ये सब कटपिट होने के बाद से, कटपिट इन द सेंस कि ये यहाँ पे देखो Na प्लस है, यहाँ से भी मैं Na प्लस को कैंसिल आउट कर रहा हूँ बिकॉज मेन इक्वेशन में हमको Na प्लस नहीं दिखने वाला है. तो क्या दिखने वाला भाई? सो इन द मेन इक्वेशन वी आर गोइंग टू सी द CH3COO माइनस प्लस H2O is in equilibrium with CH3COOH plus OH minus. तो मान लो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट है, अभी ये सॉल्ट ही मैंने लिया है, देखो CH3CO माइनस जो कि CH3CONA से आया है. तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C था
तो ये पूरा का पूरा आयनाइज करेगा CH3CO माइनस में और Na प्लस में, तो CH3CO माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C आएगा, इसका भी C आएगा और ये फाइनली 0 हो जाएगा, बिकॉज सॉल्ट जितना भी डिसॉल्व रहता है दिस विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस ओनली. आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, सम अमाउंट ऑफ C विल डिसोसिएट. तो जैसे हम अल्फा को लेते हैं ना, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज टेकन एज DEGREE, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ये हम एसिड्स और बेसिस के केसेस में लेते हैं, एसिड हो गया या बेस हो गया. Similarly, we have a term that is called H. It's called degree of hydrolysis. Degree of hydrolysis. ठीक है. So this term tells me that out of 1 mole, how many moles dissociate? So out of 1 mole, H moles are going to dissociate. So H moles will dissociate. समझ में आ रहा है क्या? तो अगर मैंने यहाँ पे 1 मोल लिया है तो उसमें से H मोल डिसोसिएट होगा. तो अगर C मोल लिया है तो कितना डिसोसिएट होगा? C into H. So let's say in the next step C में से CH moles dissociate हो गए. And look at these stoichiometric coefficients, they are all 1, 1, 1, 1. तो अगर यहाँ से 1 मोल जा रहा है तो यहाँ पे 1 मोल बनेगा, यहाँ पे भी 1 मोल बनेगा. तो अगर यहाँ से CH मोल डिसोसिएट हो रहा है तो यहाँ पे CH बनेगा, यहाँ पे भी CH बनने वाला है. ये बात समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ से C कॉमन ले लो. So this is 1 minus H. Here it is CH. Here also it is CH. So the expression of KH will look something like this: CH3COOH into OH minus ions divided by concentration of CH3COO minus. Now put all of these values here. CH3COH का concentration is C into H. यहाँ पे भी C into H. CH3CO minus का concentration C into 1 minus H. C gets cancelled. We get KH is equals to C into H square by 1 minus H. Now what is KH? What is KH? KH is hydrolysis constant. KH is hydrolysis constant. KH is hydrolysis constant. अब यहाँ पे भी अगर देखोगे तो ये जो H है और ये 1 है, so usually क्या होता है ना कि H is much less than 1 आता है. ठीक है. So the moment that happens that H is much less than 1, this whole thing is equal to approximately equal to C into H square. ठीक है ना. So ये चीज लिख लो that KH is equals to C into H square. और ये कब होगा? When H is much less than 1. So first please write it down. अब ये सॉल्ट कैसा होगा? Salt of weak acid and strong base. समझ में आया? So I'll just quickly revise what we did here. So I took the salt. कौन सा salt लिया? So I took a salt of weak acid and strong base. I took a salt of weak acid and strong base. So I took this salt CH3COONA और वो सॉल्ट को मैंने हाइड्रोलाइज कर दिया. हाइड्रोलाइज का मतलब मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया. डिसोसिएट. ठीक है. सो व्हेन इट डिसोसिएट्स अपने पास एक वीक एसिड मिल रहा है. यहाँ पे देखोगे एक वीक एसिड मिला CH3COH. तो जितना भी सॉल्ट है वो आयनाइज होगा CH3CO माइनस और Na प्लस में, और ये NaOH पूरा का पूरा आयनाइज होगा Na प्लस एंड देन OH माइनस आयंस में. और जब इसको KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के इक्वेशन में लिखोगे तो Na प्लस न्यूमरेटर में भी आएगा, Na प्लस डिनोमिनेटर में भी आएगा. इट विल गेट कैंसल्ड. तो KH का जो फॉर्मूला दिखेगा दैट इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का जो फॉर्मूला दिखेगा that will look something like this, which is concentration of CH3COH into concentration of OH minus ions divided by concentration of CH3COO minus. Parallelly solution में हमको weak acid मिल रहा है which is CH3COH.
तो वो वीक एसिड भी आयनाइज करना चालू करेगा, और जब वीक एसिड आयनाइज करना चालू करेगा, जो कि यहाँ पे कर दिया ऑलरेडी, जो हम देख रहे हैं. सो राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर K, that is CH3CO minus into concentration of H plus ions divided by concentration of CH3COOH. Now multiply these two terms, KH into Ka. So when you multiply KH into Ka, we ultimately get Kw. So KH, that is hydrolysis constant of a salt of weak acid and strong base, is equal to Kw by Ka. KH is equals to Kw by Ka. और यहाँ पे हमने एक और फॉर्मूला डिराइव किया था, जो कि ये यहाँ पे है, KH is equals to C times H square. KH is equals to C times H square. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज राइट इट डाउन. अभी इतनी हम मेहनत कर क्यों रहे हैं? तो हम इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है हाइड्रोलिसिस की वजह से, और हाइड्रोलाइज हम किसको कर रहे हैं? हम सॉल्ट को कर रहे हैं. तो ये सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, वो हमें पता होना चाहिए. तो सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, वो तो हमें H+ के कॉन्सेंट्रेशन से ही पता लगेगा. वो तो हमें pH निकाले बिना समझ में आ नहीं सकता. तो pH निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? pH निकालने के लिए हमको H+ का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए. सो कहीं पे हमको H+ का कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है क्या? किसी को दिख रहा है क्या कहीं पे भी H+ का कॉन्सेंट्रेशन? मुझे ये देखो, Ka में यहाँ पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है. ये अपने को H+ का कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है. ठीक है. सो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा प्लस माइनस करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, so that I can find the concentration of H+ ions. So cross multiply it. Here it is Ka multiplied by CH3COOH divided by concentration of CH3COO minus, I get concentration of H+ ions, Ka into. Now what is the concentration of CH3COOH? तो वो हमको यहां से मिलने वाला है. ये देखो, concentration of CH3COOH दिख रहा है, that is CH. Concentration of CH3COOH is CH. So Ka into CH divided by what is concentration of CH3CO minus? तो वो आपको यहां पे मिलेगा, इधर. Concentration of CH3CO minus is C into 1 minus H. वापस से नीचे जाइए. So here we get C into 1 minus H. Now if H is much less than 1, this is approximately equal to, अब ये C तो cancel out हो जाएगा. This will approximately be equal to Ka into H, because 1 minus H is approximately equal to 1, so denominator में 1 ही आने वाला है, which is equals to Ka into H. अभी ये H अपने को कहां से मिलेगा? तो H देखो ये यहां से मिलेगा. KH is equals to C into H square. तो इधर से अपने को H क्या मिलेगा बताओ? KH by C का अंडर रूट is H. So H is under root of KH by C. वो हम यहां पे रखेंगे. H is equals to KH by C. अब KH कहीं से, KH की वैल्यू कहां से निकालेंगे? तो KH देखो ये यहां पे है. This is KH. KH is equals to Kw by Ka. So put that value. So this whole thing is equals to Ka into under root of KH is equals to Kw by Ka. मैथ्स है अभी. Ka को अंदर ले लीजिए. तो जब आप Ka को अंदर लेंगे तो अंदर आ जाएगा Ka स्क्वायर. This term will be Ka square into Kw by Ka. Ka gets cancelled. This is under root of Ka into Kw. So concentration of, एक सेकेंड ना, कुछ तो गड़बड़ हो गया यार. ये C देखो छूट गया. C छूट गया. C छूट गया भाई. C को ले लो.
तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka इंटू KW/C। तो अभी अपने को pH निकालना है सॉल्यूशन का, pH। So pH is nothing but minus log of H plus ions, which is nothing but minus log of, अभी ये जो बड़ा सा जो टर्म है, that is Ka into KW/C, which is equal to minus, अब ये देखो log के अंदर ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट इज इक्विवेलेंट टू 1/2 का पावर ना, तो 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूं, तो ये थोड़ा अच्छे से दिखने लगेगा। 1/2 को बाहर ले लिया तो आ गया log Ka into KW/C ब्रैकेट क्लोज, which is equal to half log of Ka plus log of KW माइनस log C। यहां पे देखो माइनस साइन होगा क्योंकि पहले से ही माइनस था। समझ में आ रहा है क्या? log of A into B by C, so that is equal to log A plus log B minus log C। अब माइनस साइन अंदर ले लो, so when you take minus sign inside, so it becomes minus log Ka minus log KW प्लस log C। और हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि P is nothing but is equal to minus log, ये देखो यहाँ पे pH, so pH is nothing but pH is equals to minus log, so pH is equals to minus log of H plus ions। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे भी ये माइनस लॉग है, तो माइनस लॉग को हम P से रिप्लेस कर देंगे, so pH is equal to half of pKa plus pKw plus log C। This expression is very important because बहुत बार आपके कॉलेज के फाइनल एग्जाम में ये पूछते हैं। सो ये जो डेरिवेशन जो अभी हमने किया या जो आपने देखा, इसको जरा अच्छे से कर देता हूँ। ये जो अभी आपने देखा और जो हमने किया, ये आपके स्टैंडर्ड 12th की टेक्स्ट बुक में किया हुआ है। सो फाइनली हमको क्या मिला? फाइनली हमको pH ऑफ द सॉल्यूशन मिल गया। कौन से सॉल्यूशन का pH मिल गया? तो ये उस सॉल्यूशन का pH मिला है जिसका एसिड वीक है और सॉल्ट एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है। ये समझ में आया क्या?